Assalamu alaikum everyone. This is Sir Zeeshan Malik. This is the first lecture of basic accounting, O-levels accounting. First of all, we are going to discuss some theory elements before starting practical. We have to focus on theory. Everybody knows accounting is a practical subject, but theory is very important. Now, first of all, look at the accounting definition. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing, communicating the business data to the concerned person. It's called stakeholders. Stakeholders are those who have link with the business. हम accounting perform कर रहे हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन सेंड कर सकें कंसर्न लोगों को. Right now our focus is not stakeholders, our focus is accounting, and the first step of accounting is recording. Recording is the first step in accounting. First step in accounting. Leave other things, classifying, summarizing, communicating, leave each and everything. Right now, focus on recording. The next definition is bookkeeping. Bookkeeping is an alternate term of recording. Bookkeeping is the alternate term of recording. It means routine process of recording business transaction. I want to explain this concept through an example. For example, you are a storekeeper. You are a storekeeper or running a supermart. Okay, you have your own supermarket, supermart, or superstore. What you will be doing? One by one, tell me. You are buying things, you are selling things, you are giving payments, right? You are receiving the money. You are receiving the money. All right. When you buy things, some purchases you made immediately on cash, some may be on credit. Agreed? कुछ लोगों से आप खरीदते हो और उसी वक्त पेमेंट कर देते हो. कुछ लोगों से आप माल खरीदते हो लेकिन आप बोलते हो मैं बाद में पेमेंट करूंगा, मैं उधार ले रहा हूं. दिस इज सिंपली उधार. You buy cold drinks, you buy sugar, you buy wheat, you buy different things, number of things. कुछ को आप बोल रहे हो मैं 3 दिन बाद पेमेंट करूंगा, कुछ को आप बोल रहे हो मैं 1 हफ्ते बाद पेमेंट करूंगा, कुछ को बोल रहे हो मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा. Can you keep all these things in your mind? Of course, no. You cannot keep things in your mind. Similarly, when you are selling goods, you may be selling for cash or you may be selling for credit. तो क्या आप याद रखोगे किस किस को मैंने उधार पर माल बेचा, किस किस से पैसे मुझे लेने, कितने पैसे लेने हैं? Can you keep all things in your mind? Of course, no.
So what you have to do, the important thing is what you have to do. You have to perform recording. So my dears, this is just an example of a simple store where business is buying goods, selling goods, making payments, incurring some expenses, earning revenues, but sometimes they are selling for cash, sometimes they are selling for credit. Sometimes they buy for cash, sometimes they buy for credit. If they want to know the profit, can they calculate the profit without keeping the records? The answer is no. So recording is so crucial, so important for any business. And this is the first step in accounting. All right? So recording is the first step of accounting. It is also called bookkeeping. It is the routine process of recording business transactions. Now, what to record? Business transactions. And what is business transaction? Now we will study business transaction. Business transaction is something where you buy and sell goods or services for financial consideration. What do we mean by financial consideration? It means cash. You buy things, you sell things against cash. Cash is a medium of exchange. Keep it remember. Cash is a medium of exchange. आप चेयर्स खरीदते हो, बदले में पैसे दे देते हो. आप स्टेशनरी खरीदते हो, बदले में पैसे दे देते हो. आप मोबाइल बेचते हो, पैसे ले लेते हो. Agreed? You buy, exchange goods and services against cash, for cash. But there are two possibilities. You can buy for cash and for credit. Immediate payment होगी तो cash transaction कहलाएगी. अगर पेमेंट बाद में होगी तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगी. Basically, these are the two types of transactions: cash transaction and credit transaction. So, first of all, you have to learn these three definitions and understand their deep concept. Now, I'm moving forward towards head of accounts. This is so important. There are 5 head of accounts. How many are they? There are 5. There are 5 heads of accounts. There are 5 head of accounts. आप सबको आइडिया है अकाउंटिंग में अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं. आपने किसी बड़े से सुना होगा, फादर से सुना होगा, भाई से सुना होगा. अकाउंटिंग अकाउंट से रिलेवेंट है. उन अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन ये है. या सिंपली आप बोल लो टाइप्स. अकाउंटिंग में 10 अकाउंट भी बन सकते हैं, 20 अकाउंट भी बन सकते हैं, किसी बिजनेस के 50 अकाउंट भी हो सकते हैं. लेकिन बट दे ऑल बिलोंग्स टू दीज 5. या तो वो एसेट होगा, या लायबिलिटी होगा, कैपिटल होगा, एक्सपेंस होगा, या रेवेन्यू होगा. इन 5 के अलावा नहीं हो सकता. या तो वो एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, कैपिटल होगा, एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू होगा. ऑलराइट. सो आज हम कोशिश करेंगे इन 5 एलिमेंट्स में से फर्स्ट 3 एलिमेंट पे फोकस करें. एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल. एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल. रिपीट विद मी. एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल. Assets, liabilities, capital. Assets. What are assets? Assets are those things which are owned or controlled by the business. These are the things which business use in running its own business. The owner uses these things to run the business. The manager uses these things to run the business.
Assets are everything which are owned, controlled, possessed by the business. Whereas liabilities are dues, something which we owe, उधार होता है. एसेट हमारा अपना होता है, लायबिलिटी हमारी उधार होती है. There are two types. Now एसेट की पहले टाइप्स देखते हैं. करंट एसेट्स नंबर 1, करंट एसेट्स नंबर 2, नॉन करंट एसेट्स. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका यूज लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, देयर यूज इज लॉन्ग टर्म, इसलिए इन्हें कहते हैं नॉन करंट या फिक्स्ड. डेफिनेशन क्या है? आर दोज एसेट्स व्हिच हेल्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन अ ईयर, जो एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल ना हो, एक साल से ज्यादा यूज होंगे, जो एक साल से ज्यादा यूज होंगे वो हमारे लिए नॉन करंट एसेट कहलाएंगे. इसकी डेफिनेशन याद करने का तरीका, फॉर मोर देन अ ईयर, फॉर मोर देन अ ईयर. और करंट एसेट की डेफिनेशन, which are consumed within a year, which are consumed within 12 months. अब ये 12 months की कंडीशन क्यों है, इसको इंशाल्लाह हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे. फिलहाल आपने ये याद रखना है, फिलहाल आपने क्या याद रखना है? शॉर्ट टर्म यूज, लॉन्ग टर्म यूज. Are you getting my dear? कितना भी इस्तेमाल कर लो, बिल्डिंग एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती. गाड़ियां हैं, फर्नीचर है, जनरेटर्स है, एयर कंडीशनर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, देयर लाइफ इज मोर देन अ ईयर. 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल. हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने की बात नहीं कर रहे, ओके? हम किसी जल्जले की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल यूज की बात कर रहे हैं. एग्रीड? वेयर एज करंट एसेट्स आर कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, कितना भी हो खत्म हो जाता है, कितना भी हो इस्तेमाल हो सकता है, खत्म हो सकता है विद इन अ ईयर. इन्वेंट्री, मैंने एग्जांपल ली थी स्टोर की, तो स्टोर के अंदर जो माल रखा होता है उसे इन्वेंट्री कहते हैं. अब आप सोच के बताओ, इम्तियाज है, हाइपर स्टार है, उनके स्टोर में जितना माल पड़ा हुआ है वो उनका इन्वेंट्री है. अब आप सोच के बताओ उनका प्लान क्या होता है? जो आटा वो खरीद रहे हैं, जो घी, मक्खन, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस वो खरीद रहे हैं, क्या इंटेंशन ये होती है कि हम इसको 3 साल बाद बेचेंगे, 5 साल बाद बेचेंगे? जी नहीं. दे बाय फॉर 2 और 3 months, और इंटेंशन क्या होती है? विद इन अ मंथ बिक जाए, जल्द अज जल्द बिक जाए. तो इन्वेंट्री इज सच काइंड ऑफ एसेट which can be used within a year. याद रखोगे, शॉर्ट टर्म यूज, लॉन्ग टर्म यूज. लेकिन इम्तियाज के अंदर जो जनरेटर रखे हुए हैं उनका यूज कितना है? लॉन्ग टर्म. एयर कंडीशन लगे हुए हैं, क्या वो बेचते हैं? जी नहीं, वो यूज करते हैं उन एयर कंडीशंस को, उन फर्नीचर को. जो शेल्फ लगे हुए हैं उनका यूज लॉन्ग टर्म है. तो जो शेल्फ है, फर्नीचर है, एयर कंडीशन है, वो नॉन करंट है. और जो स्टॉक वगैरह है या कैश उनके पास पड़ा हुआ है वो उनका करंट एसेट है. ऑलराइट माय डियर, इन एग्जांपल्स को याद रखिएगा, ये बार बार अपने जहन में रिवाइज करते रहेंगे. इंशाल्लाह अकाउंटिंग बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएगी. और आपको पता है आपके सर का स्लोगन है घोल के पिला दे, तो सर आपको घोल घोल कर समझा रहे हैं. राइट नाउ लायबिलिटीज पे आ जाएं. लायबिलिटीज आर थिंग्स व्हिच द बिजनेस ओड. ये उधार है हमारा, ये हमने उधार पे माल खरीदा हुआ है, या हमने किसी से कर्जा लिया हुआ है, ये लायबिलिटीज कहलाती हैं. अगेन 2 टाइप्स की लायबिलिटीज हैं, नंबर 1 करंट, नंबर 2 लॉन्ग टर्म. वो उधार जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है,
1 साल के अंदर अंदर पे करना है वो करंट लायबिलिटीज हैं, और जो आपने कर्जा लिया है 5 साल बाद दूंगा, 10 साल बाद वापस करूंगा, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, उसका नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज। एग्जांपल लिखी हुई है इसमें, लोन, सिंपली सबको पता है बैंक लोन हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। अगर शॉर्ट टर्म लिया हुआ है 6 महीने का लोन है तो वो करंट लायबिलिटी कहलाएगा। ट्रेड पेएबल, आपने कुछ चीजें खरीदी हैं, मिसाल के तौर पर आपने पेप्सी खरीदी है उधार पर, अब आपने 10 क्रेट खरीदे हैं उधार पर पेप्सी के 10 क्रेट आपने स्टोर में रखने के लिए 10 पेप्सी के आपने बॉक्स क्रेट्स खरीदे हैं। क्या आप पेमेंट कब करोगे उसको? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 10 साल बाद? ऑफ कोर्स 1 हफ्ता 2 हफ्ता। ये लायबिलिटी शॉर्ट टर्म होती है बेटा, ट्रेड पेएबल इसका नाम है। ये कब आती है? जब आप खरीदते हो उधार पर। ट्रेड पेएबल को डिटेल में बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। बैंक ओवरड्राफ्ट, आप बैंक से कह देते हो मैं 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए कुछ पैसे दे दो, आपका बैंक अकाउंट पहले से मौजूद है, आपके पास पैसे शॉर्ट हो रहे हैं तो आप उससे कहते हो कि मुझे कुछ शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। आइए मैं आगे जा रहा हूं कैपिटल की तरफ। कैपिटल, समथिंग द ओनर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर। Owner can invest in cash. Owner can invest in cash or any other item in any other form. ओनर चाहे तो अपने घर का फर्नीचर लेके आ सकता है, ओनर चाहे तो अपने घर के कंप्यूटर लेके आ सकता है। जो कुछ ओनर लेकर आएगा वो कैपिटल कहलाएगा, वो कैपिटल कहलाएगा। आपने सुना होगा बिजनेस स्टार्ट कुछ लोग अपने घर से कर लेते हैं, तो उनका जो घर की बिल्डिंग है वो उनका कैपिटल हो जाएगा। अगर वो आधे हिस्से में कर रहे हैं तो आधा हिस्सा भी हो सकता है। तो वैसे आमतौर से ये नॉर्मल एग्जांपल नहीं है, वैसे आप ध्यान बना सकते हैं। ओनर अपने घर से फर्नीचर ला के इन्वेस्ट कर सकता है, व्हीकल ला के इन्वेस्ट कर सकता है, गाड़ी ला के इन्वेस्ट कर सकता है। तो 3 चीजें आज आपने समझनी है। एसेट वो चीजें जो हमारी अपनी है, लायबिलिटी जो हमने उधार लिया है, कैपिटल जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। We were on theory. We have discussed accounting is the art of recording, classifying, summarizing, but we are focusing on recording right now. We have seen bookkeeping, routine process of recording business transactions. You are supposed to learn each and every definition, right? These are very important definition and ask about an exam. Bookkeeping term generally asked an exam. Accounting ask an exam. एक मेरी थ्योरी एग्जामेबल थ्योरी है और एग्जामिनर पूछता है अक्सर और बेशतर। So you have to learn it. It's very precise, very straightforward. No hanky panky. Okay? We have done with business transaction, माल खरीदना या बेचना against cash. It may be on cash transaction or credit transaction. Now we move towards a very important 5 head of accounts, 5 main classification of account. Accounting may have 50 accounts, but they all belongs to these 5: asset, liabilities, and capital. These 3 we have seen, and we will elaborate further to expenses and revenues also. Assets are something which are owned by the business. Liabilities are owed by the business. Capital is investment made by owner. जो कुछ owner में business के अंदर ओनर लाया है वो कैपिटल कहलाएगा। एसेट 2 तरह के होते हैं, अगर शॉर्ट टर्म यूज है तो करंट एसेट, अगर लॉन्ग टर्म यूज है तो नॉन करंट एसेट। लायबिलिटीज की भी 2 टाइप्स हैं, अगर
विद इन अ ईयर आपको पे करनी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी कहलाएगी। और अगर आपका लोन है, आपका लायबिलिटी लंबे पीरियड की है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। Now further move to expenses and revenues. Expenses simply खर्चों को कहते हैं सर। जिंदगी में आप सब जानते हैं खर्चे, आज तक आप लोगों ने किए ही खर्चे हैं। Anyhow, simple example of expenses are rent, which if we hire some place to run our store, तो वो जो 2 कमरे 4 कमरे या 2 दुकानों के ऊपर स्टोर बनाया हुआ है आपने, जो स्टोर का किराया होगा वो आपका एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो आपका एक्सपेंस है। आपने स्टाफ रखा हुआ है, उनको सैलरीज देनी है, वो एक्सपेंस है। आप मार्केटिंग करोगे आपका एक्सपेंस है। आप स्टेशनरी खरीदोगे आपका एक्सपेंस है। गाड़ियों का पेट्रोल आपका एक्सपेंस है। गाड़ियों की मेंटेनेंस आपका एक्सपेंस है। आपका स्टाफ ट्रेवल करेगा रिक्शे में, बस में, बिजनेस के खर्चे के ऊपर एक्सपेंस है। Right? Expenses are very much clear to all of you. Now, revenues. Revenues are the main essence of any business. Business करता ही किसके लिए हो? कमाने के लिए। याद रखिएगा, business की definition है where the basic purpose is to earn profit. If the basic purpose of any entity, any organization, if the basic purpose of any organization is to earn profit, that organization is called business. AG, आलमगीर वेलफेयर, ये बिजनेस नहीं है, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक सिटी स्कूल, लाइक इम्तियाज सुपर स्टोर, लाइक गुल अहमद आइडियाज, दे आर बिजनेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। इनका मकसद, स्टाइलो किस लिए खुला है? आप लोगों को चप्पलें मिल जाए इसलिए खुला है स्टाइलो। EBH, हश पपीस, these organizations purpose is to earn profit. तो याद रखिएगा, किसी भी बिजनेस का सर्वाइवल प्रॉफिट होता है, बिजनेस अगर है तो। So revenues are the earnings of the business. बिजनेस कमाई होती है, कमाई को बोलते हैं ये earnings। इसकी एग्जांपल्स हैं सेल ऑफ गुड्स, जो माल हमने, जिसे मैंने एग्जांपल दी थी स्टोर की। आपका स्टोर है, आप स्टोर में माल खरीदते हो, रेंट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हो, सैलरीज देते हो। लेकिन आपका रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू क्या होगा? जब आप सेल करोगे उन शुगर को, सोप को, पेप्सी को, ब्रेड को, जब आप सेल करोगे वो आपका रेवेन्यू है, उसमें आपका प्रॉफिट होगा। रेंट हमारा रेवेन्यू है। अगर आपका बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है खरीदी हुई है और उसको आप किराए पे दे दो, डबल स्टोरी है, नीचे आप काम कर रहे हो, ऊपर जगह खाली है, ऊपर वाली जगह किराए पे दे दी, तो वो रेंट आपका रेवेन्यू बन जाएगा, इनकम हो जाएगी, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। कमीशन, स्टेट एजेंट वाले कमीशन कमाते हैं। स्टेट एजेंट वाले किसी और का घर किसी और को सेल करवाते हैं, बीच में अपना क्या लेते हैं? कमीशन। 1% उनका क्या होता है? कमीशन, रेवेन्यू। तो 5 एलिमेंट्स हैं, मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, अच्छे से याद कर लो। पूरी अकाउंटिंग इन 5 के दरमियान ही घूमेगी। आपकी पूरी अकाउंटिंग इन 5 टाइप्स के दरमियान ही घूमेगी। इन 5 के बाहर अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। एसेट वो चीजें जो आपकी अपनी है, लायबिलिटीज जो आपका उधार है, आपने वापस करने हैं। नंबर 3 कैपिटल, जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में। नंबर 4 आपके खर्चे। नंबर 5 आपकी कमाई, आपकी अर्निंग्स, आपकी इनकम्स। All right, do revise them and learn each and every one, everything. I have already shown you the examples. Now moving towards very interesting item, that is separate entity concept. This is very interesting concept. Everybody should be focused. Everybody should be focused.
separate entity concept. The business and owners are two separate entities. The business and owner are two separate entities. I want to tell you another name, business entity concept. Separate entity concept और business entity concept. ये क्या कहता है? ओनर अलग है, बिजनेस अलग है. ओनर किसका? सॉरी, बिजनेस किसका? ओनर का. लेकिन ओनर और बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर सेपरेट ट्रीट होंगे. दे आर टू सेपरेट. ओनर अलग है, बिजनेस अलग है. हाउ सर? नाउ लिसन. Mr. Ali want to start the business. So who has to make investment in the business? Who has to make investment in the business? Of course, Mr. Ali has to put investment. For example, he started business with $5,000. आपका क्या ख्याल है? क्या अली के पास से $5,000 ही थे? क्या जरूरी है अली के पास से $5,000 ही थे जो उसने बिजनेस में लगा दिए? जी नहीं. He may have $10,000, $8,000, $50,000. एक बंदे के पास कितने भी रिसोर्सेस, कितने भी पैसे हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे बिजनेस में लगा दे. एक अच्छा कारोबार करने वाला शख्स सारे बिजनेस में पैसे नहीं लगाता. Never put all eggs in one basket. फॉर एग्जाम्पल, उसके पास $12,000 थे और उसने $5,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किए. इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट उसकी प्राइवेट है. रिमेनिंग अमाउंट उसके पास $7,000 है जो उसके अपने हैं. अब मुझे बताओ, उसने इन्वेस्ट कितने किए बिजनेस में? $5,000. अब वो $5,000 से कारोबार कर रहा है. इसी से वो एसेट खरीद रहा है, इसी से लायबिलिटीज जनरेट होंगी, सब कुछ इसी का होगा. इसी से वो एक्सपेंस पे करेगा. एग्रीड और नॉट? वो फर्नीचर खरीदे, वो मशीन खरीदे, वो गाड़ी को रिपेयर करवाए, वो इन 5,000 में से करवाएगा. क्या इन 7,000 का कोई लिंक है? द आंसर इज नो. इन 7,000 का इससे कोई लिंक नहीं है. तो ओनर इज सेपरेट, द बिजनेस इज सेपरेट. अब वो ये 7,000 कहीं भी खर्च करे, अपने बच्चों के टॉयज लेके खरीद ले, बीवी के लिए गिफ्ट खरीद ले, क्या हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे? क्या इन पैसों से जो स्पेंडिंग होगी, एक्सपेंस किए जाएंगे या एसेट खरीदा जाएगा, क्या वो हम यहां बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे? द आंसर इज नो. इसी तरह एक ओनर के 10 कारोबार हो सकते हैं, होते हैं, 2 कारोबार होते हैं, 3 कारोबार होते हैं, लेकिन हर बिजनेस के रिकॉर्ड्स अलग 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 मेंटेन होते हैं. हर बिजनेस के रिकॉर्ड्स सेपरेटली मेंटेन होते हैं ताकि हर बिजनेस का अलग अलग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाए, ताकि हर बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली कैलकुलेट किया जाए. ओके, याद रखिएगा इसको. नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से ही रेलेवेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन. इट इज बेस्ड ऑन एन आइडिया. क्या आइडिया है सर इसका? इसका आइडिया ये है कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो सोर्सेस के बराबर होना चाहिए. मिसाल के तौर पर अली ने कारोबार शुरू किया. अगेन, मिस्टर अली वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस. अली इन्वेस्ट $5,000 in the form of cash. So अब आप मुझे बताइए, ये 5,000 आपके लिए क्या है? एसेट्स. और ये इन्वेस्ट कौन कर रहा है? अली, द ओनर.
ओनर इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। तो वो 5,000 का कैश लाया तो 5,000 ही का इसका क्या आया? कैपिटल। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल। बाद में जाके इसको एहसास हो रहा है कि यार ये 5,000 जो है ना कम है, मुझे कारोबार चलाने के लिए और पैसे चाहिए होंगे। took loan $3,000 for business। अब आपके पास और पैसे आ रहे हैं। अगेन जो पैसे आएंगे वो क्या कहलाएंगे? एसेट। पहले से 5,000 मौजूद थे, 3,000 और आ गए, टोटल हो गए 8,000। एग्रीड। ऑन द अदर हैंड पहले से आपके पास कैपिटल मौजूद था 5,000 का, आपने अभी लोन लिया है, लोन आपकी लाइबिलिटी है। कितने का लोन लिया? 3,000 का लोन लिया। तो ये टोटल मिला के क्या बने? $8,000। एंड दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैं लोन की जगह इसकी सही टर्म नोट करूंगा। लोन की जगह मैं इसकी सही टर्म यूज कर रहा हूं, दैट इज जो लोन लिया है वो क्या है? आपकी लायबिलिटीज। एग्रीड। लोन आपकी क्या है बेटा? लायबिलिटी। सो एसेट मस्ट ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। Asset must always equals to capital plus liabilities। इसके अंदर पहले 5,000 कैश ओनर लाया था, फिर 3,000 उसने कर्जा ले लिया। तो 5,000 ओनर की इन्वेस्टमेंट है, 3,000 किसी और की इन्वेस्टमेंट है। इस तरह सोच लो। तो बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज होते हैं या तो वो ओनर लेकर आता है या वो किसी और से उधार लेता है। बिजनेस में कोई भी चीज अल्लाह वास्ते नहीं है, ये बात याद रख लो। कोई एड डोनेशन टाइप की चीज बिजनेस में नहीं होगी। या तो वो आसमान से नहीं टिपकेगी, आसमान से कोई चीज नहीं आ रही। जो भी बिजनेस में चीजें नजर आती हैं आपको, आप सोचो, किसी स्टोर रूम को सोचो, किसी स्कूल को सोचो, उसके पास जो जो चीजें मौजूद हैं या तो वो ओनर लेके आया होगा या उसने किसी से उधार पर लिया होगा। चाहे वो कैश हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, या तो ओनर का लाया हुआ है या उसने किसी से उधार लिया है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखिएगा। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऑलराइट माय डियर्स, तो आज का मेरा टारगेट यही था कि आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से समझ में आ जाए, तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा।